Hello guys, welcome back again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. I think you all are safe and happy. Safe from pandemic corona. Okay guys, and today we are going to start a special topic of unit number first, electrostatics, grouping of capacitors guys, grouping of capacitors. And we know that we grouped the capacitor in two ways. First is series and second is parallel. So we can discuss both these two arrangements one by one. First we discuss series arrangement, then we discuss about parallel arrangement. Then first is series arrangement. First is series arrangement of capacitors. Capacitors are said to be in series arrangement if charge on each capacitor is same. मीन्स टू से दैट अगर मैंने एक या दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया है तो सभी के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा गाइज. चार्ज क्या होगा, सेम होगा. और इस डेफिनेशन को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं. द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन वन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर थ्रू वन पाथ. ठीक है, जब एक ही पाथ हो. ठीक है, पाथ क्या हो, एक ही हो. तो कैपेसिटर्स कैसे होंगे, सीरीज में होंगे. ठीक है, तो देखें मैं अरेंजमेंट दिखाता हूं. मैं तीन का केस लेके चलता हूं. मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं. दिस इज कैपेसिटर 1 पॉजिटिव साइन, दिस इज कैपेसिटर 1 डिनोटेड बाय C1, दिस इज कैपेसिटर C2 denoted by C2, this is capacitor C3, both the three capacitors are connected in series arrangement. This is capacitor C1, this is capacitor C2 and this is capacitor C3, and charge on each capacitor is same, and potential difference for capacitance C1 is V1 and for capacitance C2 is V2 and for capacitance C3 is V3. Means charge is same but potential is not same. Charge is same but potential is not same. Clear guys? This potential V1 plus V2 plus V3 is equal to V. Clear guys? तो V is equal to क्या होगा, V1 plus V2 plus V3 guys. तो मैं लिख भी सकता हूं नेट पोटेंशियल यहां से कितना होगा, नेट पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2 plus V3. इसको इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट, बी दी नेट पोटेंशियल, बी दी नेट पोटेंशियल. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. ये क्या है, नेट पोटेंशियल है गाइस. ठीक है, लेकिन आप एक रिलेशन जानते हो. क्या जानते हो, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा. और यहां होता है, और V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C. V इज इक्वल टू कितना गाइस, Q बाय C होता है. ठीक है, तो देखना यहां से V1 कम्स आउट टू बी, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 कम्स आउट टू बी, चार्ज सेम है तो Q बाय C1, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है. V2 कम्स आउट टू बी Q बाय C2 एंड V3 कम्स आउट टू बी Q बाय C3. एंड नेट V लिखे, नेट V, वी हैव नेट V इज इक्वल टू Q बाय CS. CS डिनोट हेयर, CS किसको डिनोट कर रहा है, कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, वो भी किस में, सीरीज में गाइस. ठीक है, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 and V in equation number first. By putting the values in equation first, we get
हमें क्या मिलेगा, वी गेट V इज इक्वल टू क्यू बाय सी एस इज इक्वल टू V1 क्यू बाय C1 प्लस V2 क्यू बाय C2 प्लस V3 क्यू बाय C3. क्यू कम्स आउट टू बी कॉमन, क्यू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 guys. Clear guys? Cancel out Q from both sides. Then 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the value of net capacitance when the capacitors are arranged in series manner. When the capacitors are arranged in series manner guys. When the capacitors are arranged in series manner guys. Clear or not? Guys, next is capacitors in parallel arrangement. Capacitors in parallel arrangement guys. In parallel arrangement, potential of the capacitors are same. Capacitors are said to be in parallel arrangement if potential drop across each capacitor is same. मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हर कैपेसिटेंस का वो क्या होगा, सेम होगा. चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे. ठीक है. और एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वी कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग डिफरेंट पाथ. देखो सीरीज के अंदर पाथ सेम हो रहा था, लेकिन यहां जो पाथ होगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. मैं आपको दिखा रहा हूं अभी. देखो, दिस इज कैपेसिटर C1 हैविंग चार्ज Q1, having charge Q1. This is capacitor C2 having charge Q2. This is capacitor C3 having charge Q3. Clear guys? तीनों का क्या होगा, देखो पाथ क्या है, डिफरेंट है. तीनों का पाथ क्या है, डिफरेंट है. वहां पाथ क्या हो रहा था, सेम हो रहा था. ठीक है, वहां पाथ क्या हो रहा था, हमारे पास सेम हो रहा था. इसके कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटर चार्ज कितना है, Q1 है. कैपेसिटर कितना है, C2 है, चार्ज कितना है, Q2 है. कैपेसिटर C3 है, चार्ज कितना है, Q3 है. यहां क्या है गाइस, एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. क्लियर गाइस? V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो देखना यहां से मैं नेट चार्ज लिख सकता हूं, तीन कैपेसिटर का केस लेके चला हूं, तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. अब देखना, पोटेंशियल तो सेम है, वही कंसेप्ट एक बार यूज करता हूं, Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, Q इज इक्वल टू CV वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं. ठीक है गाइस, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 कम्स आउट टू बी, देखना Q1 कम्स आउट टू बी. ठीक है, Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू पोटेंशियल तो क्या है, सेम है. पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है रे बाबा. पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है. तो Q1 इज इक्वल टू C1V. Q2 इज इक्वल टू, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V and Q3 is equal to C3 into V. Clear guys? आगे हम क्या करेंगे, by putting the values of Q1, Q2 and Q3 in equation number first, we get क्या मिलेगा हमें, तो Q कितना हो जाएगा. एक और चीज बाबा रे बाबा, ये तो निकालना भूल ही गए. Q कम्स आउट टू बी CP, लिख देता हूं CP, कैपेसिटर नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इनटू V. V तो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है. तो यहां देखना इक्वेशन नंबर 1 कितनी बन जाएगी, CPV इज इक्वल टू Q1 C1V प्लस Q2 C2V प्लस Q3 C3V. क्लियर गाइस?
CPV, V comes out to be common, C1 अंदर ब्रैकेट में C2 प्लस C3 गाइस। यहां देखना V कॉमन आ गया तो CP कितना बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस फॉर 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल अरेंजमेंट। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट फॉर 3 कैपेसिटर्स। ऐसे ऐसे n कैपेसिटर्स भी आप ले सकते हैं गाइस, ऐसे ऐसे n कैपेसिटर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये थी अरेंजमेंट सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट कैपेसिटर्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स यहां से 101% पूछा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था 101% न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उस वीडियो को कोई भी बच्चा मिस ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वीडियो इस चैप्टर से, इस यूनिट से होने वाली है वो, ठीक है। और एक कुछ बच्चों जो है ना डिप्रेस से हो गए हैं पिछले साल वाले, जो CBSE ने अभी बोला है 12th क्लास के लिए कि एग्जाम्स अभी जो है नहीं ले रहे हैं, कैंसिल कर दिया है। तो कोई ऐसा आप डिप्रेस ना हो, ठीक है। आपको फ्यूचर में भी क्या है टाइम दिया जाएगा, जिसको एग्जाम देना है, जो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आपका रिजल्ट जो है वो बनेगा। कुछ बच्चे इससे अगर जो है इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो इस रिजल्ट से जो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो बच्चे जो दोबारा अपने पेपर दे सकते हैं, चाहे वो 10th के हैं चाहे वो 12th के हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की हो, ठीक है, उसके मार्क्स कम मिले, उसको कम आए उसके मार्क्स, क्योंकि असेसमेंट के हिसाब से है, तो उसमें अटेंडेंस वगैरह सभी चीज़ें देखी जाएंगी। बच्चे की अटेंडेंस तो नहीं देखी जाएगी क्योंकि लॉकडाउन था, ठीक है। हो सकता है प्रीवियस जो उसके रिजल्ट्स रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस के जो रिजल्ट्स रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है उसको मार्क्स दे दिए जाए। हो सकता है किसी बच्चे ने इस बार ज़्यादा मेहनत की हो, ठीक है। तो डिप्रेस ना हो बेटा, डिप्रेशन का कारण बन जाता है कई बार। आप पेपर दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर लिखा है न्यूज़पेपर में भी, मैंने पढ़ा था आज, कि अगर स्थिति ठीक होती है तो वो बच्चे फिर से अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो पेपर दोबारा से दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या रहे, अपने घरों पर रहें, ठीक है। पेंडेमिक है, महामारी है, ठीक है। तो घरों से बाहर ना निकले तो मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का यूज करें अगर बाहर जाके किसी चीज़ कुछ होते हैं तो, ठीक है। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू गाइस।